Now, in our unit number 2, the next topic which we are going to discuss today is a smaller relation between energy and momentum of a microscopic particle. You know, subatomic particles are called as macroscopic particles. The particles which required electron microscope to see them. For example, electron, proton, or deuteron, hydrogen atom. These we cannot see with our naked eyes, so these are called as microscopic particle. Let us consider a microscopic particle having rest mass m0. Okay? If its velocity v, which is close to velocity of light but less than velocity of light, but very close. Say velocity of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, then this velocity v should be 2 into 10 to the power 8 meter per second, like that, very close. At that time, the rest mass will no more be the rest mass for the particle if it is moving with a very large velocity. At that time, its relativistic mass we have to consider, and let m is the relativistic mass. Then, according to Einstein, the relativistic mass of such a particle is given by m0 divided by under root 1 minus v square by c square. Now, you can see from this equation, if this v becomes equal to c, then c square cancel हो जाएगा, 1 minus 1, it will be 0, and the relativistic mass will be infinite. And if this is very close to velocity of light, at the time it will be m equal to m0 divided by under root 1 minus, yes, ये वैल्यू थोड़ी सी कम है, means definitely the relativistic mass will be greater than the rest mass. Say this is equation number 1. Now solving this equation, and we will try to search for relation between energy, that is E and momentum of the particle, that is P. This we are going to find the relationship, right? Let us see what relation we are getting at the end, because that relation is very much of use in our succeeding topics. So ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लिख रहे हैं इस तरीके से, m इंटू ब्रैकेट अंडर रूट, यहाँ पे दिख रहा है ये, आई विल राइट c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, ये हो गया, दैट विल बी इक्वल टू m0. नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग वी गेट m स्क्वायर into bracket c square minus v square divided by c square is equals to m0 square. Now cross multiply कीजिए, m square c square minus m square v square is equals to m0 square c square, equation number 2. Multiply this equation by c square, we will get m square c to the power 4 minus m square v square c square will be equal to m0 square to the power 4. This is equation number 3. Now we know that momentum of the particle P is equals to mv. Therefore, P square is equals to m square v square. Let us write this value in this equation number 3. Then I will write by equation number 3. What can I write? m into c square to the power 2. इसको मैंने लिखा, माइनस पी स्क्वायर, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर की प्लेस पे, सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू m0 स्क्वायर टू द पावर 4. अगेन वी नो दैट E इक्वल टू mc स्क्वायर बाय आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन, by Einstein's relation. Therefore, this is E is equals to mc square. Therefore, E square is equals to m square to the power 4. Then if write this will be equation number 4. Then from equation number 4, what did I get? M into c square. You are getting this? What was that? M square, that is m square into c square, that is mc square to the power 4 था, तो उसको हमने लिखा था इस तरीके से, तो E is equals to mc square m square to the, ये हो गया, ठीक है. This can also be written as m into c square whole square. So यहाँ पर m into c square whole square की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे? E square. So ये जो मेरी इक्वेशन आएगी यहाँ पे हम लिखूंगा by 4 E square
minus p square c square is equals to m0 square to the power 4, and therefore e square is equals to p square c square plus m0 square to the power 4, and at the end taking square root, e is equals to under root p square c square plus m0 square to the power 4. This is the required relationship between energy and momentum of a microscopic particle. This particular smaller relationship was asked 2-3 times earlier in Nagpur University examination. So it is very simple to solve it. You have to define, consider a microscopic particle like electron, proton or subatomic particle. Let m0 is the rest mass. If velocity v is the velocity which is close to but less than velocity of light, then its relativistic mass m according to Einstein is given by this relation. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें दो सब्स्टिट्यूशंस आप करेंगे. पहला सब्स्टिट्यूशन रहेगा p इक्वल टू एम वी, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रहेगा e इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ये दो सब्स्टिट्यूशन जैसे आप करते हैं और एक दो स्टेप आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाता है e इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी टू द पावर 4. Got the point? So this is one of a very important relationship which we are going to use in our next topic, which is Compton effect. So you have to write it very properly. This is the question, and that was the relationship, right? Now let us move towards our next topic, which is Compton effect. It is a very important topic as far as our examination scheme is considered, और इसको बहुत डिटेल में स्टडी करना है. So Compton is the name of a scientist. Compton effect, or it is also known as Compton scattering. Compton effect or Compton scattering. Now, first of all, you should remember the scattering of light. कि scattering of light आप किसे कहते हैं? मैं एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास में जैसे बारिश के दिन रहते हैं, रेनी सीजन रहता है, रात में बारिश हुई या सर्दियों का दिन है, पत्ते के ऊपर में ऐसा आपका जो रहता है, सपोज ये एक लीफ है, इसके ऊपर में यहाँ पर एक वाटर का ड्रॉपलेट है, ड्यू ड्रॉप है. अब अगर से कहीं से इसके ऊपर में लाइट सुबह की पड़ती है तो ये क्या होता है, ये ग्लिटर करता है, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर में उस रेडिएशन को ऐसा इमिट करता है. तो दिस इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट in random direction when a monochromatic light or any light incident on a particular material. This material is called as scatterer, and this effect is called as scattering of light. This effect is called as scattering of light. आपने देखा होगा डायमंड का एक ऐड आता है, एक डार्क सा बैकग्राउंड दिखाता है, उसमें एक ऐसा डायमंड का पीस रहता है और वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर में ऐसा ग्लिटर करता है, राइट? कैसे ग्लिटर करेगा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर से आप उसके ऊपर में सपोज वो ग्रीन कलर में या किसी एक सिंगल कलर में अगर से ग्लो कर रहा है येलो के अंदर में, तो एक इंसिडेंट लाइट आप उसके ऊपर में लेकर आते हैं. जब वो लाइट इस पर्टिकुलर डायमंड जो कि एक ऑसिलेटर है या एक स्कैटरर है, उस स्कैटरर के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में जब वो पड़ती है तो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो इस आने वाली इंसिडेंट वेव के साथ में अपने आप को ऑसिलेट करते हैं और उसके वो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जब वो एक्सेलरेट होता है तो वहां से रेडिएशन इमिट करता है. तो जिस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के साथ वो जो एटॉमिक ऑसिलेटर रहते हैं वो जब ऑसिलेट होते हैं तो किसी भी डायरेक्शन के अंदर में उसी फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ जो रहेगा वो यहाँ पर इमिट करेंगे या स्कैटर कर देंगे. तो यहाँ पे जितने भी एटॉमिक ऑसिलेटर इस लाइट के इफेक्ट के अंदर में आएंगे वो सारे रैंडमली सारे डायरेक्शन के अंदर में इमिट करेंगे, एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन एंड दिस स्कैटर्ड रेडिएशन. और यहाँ पे इनके इंटेंसिटी भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन रहेंगी वो ये, अगर से इंसिडेंट रेडिएशन मोनोक्रोमेटिक है तो जिस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का लाइट यहां पर आ रहा है, ये स्कैटर्ड सारे वेव्स में, सारे स्कैटर्ड रेडिएशन के अंदर में वही वेवलेंथ या वही फ्रीक्वेंसी की लाइट आपको मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा. ये कब हुआ? जब आपने एक विजिबल लाइट को एक स्कैटरर के ऊपर में इंसिडेंट करवाया. इसके उल्टे कॉम्पटन ने क्या किया? कॉम्पटन ने क्या किया, एक लाइट एलिमेंट का स्कैटरर ले लिया, दिस इज स्कैटरर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में उस पर उसने एक मोनोक्रोमेटिक हाई एनर्जेटिक एक्सरे को इंसिडेंट करवाया. मोनोक्रोमेटिक
हाई एनर्जेटिक एक्सरे को उसने इंसिडेंट करवाया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में, लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के अंदर में उसने एक्सरे को यहाँ पर इंसिडेंट करवाया। अब उसने जो स्कैटर्ड रेडिएशंस थे, जैसे स्कैटरिंग हुई थी, यहाँ पर भी स्कैटरिंग हुई, जो स्कैटर्ड रेडिएशंस थे उसको ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर में उसने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। एक ये डायरेक्शन थी, दूसरी ये डायरेक्शन थी, तीसरी ये डायरेक्शन थी, चौथी ये डायरेक्शन थी, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर में उसने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया। तो ही फाउंड दैट there is one component whose wavelength and frequency is equal to that of incident. Let us consider incident X-ray का जो wavelength था वो था lambda I for incident। तो उसको कुछ कंपोनेंट्स स्कैटर्ड रेडिएशन के अंदर में ऐसे मिले जिनका वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ के बराबर था, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में या कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर में उसे ऐसे वेवलेंथ मिले स्कैटर्ड रेडिएशन के जिनकी वैल्यू इंसिडेंट से ज़्यादा थी। ये डिस्कवरी है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। अभी हमने जो देखा नॉर्मल स्कैटरिंग, जो हमने विजिबल लाइट को लेके देखा, उसमें यह पता चला कि जितने भी स्कैटर्ड रेडिएशन थे किसी का भी वेवलेंथ इंसिडेंट से ज़्यादा या डिफरेंट या कम नहीं था, सबके सब इंसिडेंट के बराबर थे। लेकिन जब हमने उस स्कैटर के ऊपर में हाई एनर्जेटिक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में इंसिडेंट करवाया, तो इंसिडेंट रेडिएशन के अंदर में उसे क्या मिला? दो टाइप के कंपोनेंट ऑफ वेवलेंथ मिले। एक ऐसा मिला जिसकी वैल्यू इंसिडेंट के बराबर थी, इसको उसने नाम दिया अनमॉडिफाइड कंपोनेंट। क्या नाम दिया? अनमॉडिफाइड कंपोनेंट ऑफ वेवलेंथ। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में एक ऐसा कंपोनेंट मिला जिसका वेवलेंथ इंसिडेंट से ज़्यादा था, इसको उसने नाम दिया मॉडिफाइड कंपोनेंट ऑफ वेवलेंथ। इसको क्या नाम दिया उसने? मॉडिफाइड कंपोनेंट ऑफ वेवलेंथ। तो दो फाइंडिंग्स थे इसके पास। पहला फाइंडिंग ये था कि देयर एग्जिस्ट अ कंपोनेंट ऑफ वेवलेंथ हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसिडेंट एंड दिस मॉडिफाइड कंपोनेंट हैज डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल। इंसिडेंट डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन के ऊपर में आप स्कैटर्ड रेडिएशन को स्टडी करते हैं उसे कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। ही फाउंड दैट थीटा के डिफरेंट वैल्यू पर, कुछ डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर में इसे जो मॉडिफाइड कंपोनेंट मिला उसकी वैल्यू इंसिडेंट कंपोनेंट से डिफरेंट थी। तो दिस इफेक्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडिफाइड कंपोनेंट ऑफ वेवलेंथ, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्पटन इफेक्ट एंड ही concludes that the difference between modified component and unmodified component is termed as Compton shift, which is represented by delta lambda. The difference between modified and unmodified component is known as Compton shift. It is represented by delta lambda. So I am writing here Compton shift is equals to, this is Compton shift is equals to delta lambda, which is lambda f minus lambda I. तो एक सेंटेंस में या दो सेंटेंस में आपसे पूछा जाता है कि स्टेट कॉम्पटन इफेक्ट, तो आप कैसे स्टेटमेंट इसका लिखेंगे? आप ध्यान से सुनिए। When high energetic monochromatic X-rays are scattered by a particular scatterer, then in scattered component it was found by Compton that there exist two kind of wavelength. One has same value of wavelength as that of incident, known as unmodified component, and second at certain angles, second component has slightly greater wavelength, that of incident, called as modified component. The difference between modified component and unmodified component is called as Compton shift, and this effect is known as Compton effect. Got the point? So this is how one can define and explain Compton effect. Then there comes 2-3 simple questions. We will try to discuss them in brief. First question is that why classical theory, जो वेव थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन कॉम्पटन इफेक्ट? या why classical theory is failure in explaining Compton effect? Now, according to classical theory of electromagnetic radiation,
अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होगा ये समझिए। आपको जो एटॉमिक ऑसिलेटर रहेगा, ये आपका एटॉमिक ऑसिलेटर, जो भी मटेरियल था, जो स्कैटरर था, उसका जो एटॉमिक ऑसिलेटर रहेगा, ये उसका एटॉमिक ऑसिलेटर है। इस एटॉमिक ऑसिलेटर का एक इलेक्ट्रॉन है। जब इसके ऊपर में इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे जब आएगी, जब इंसिडेंट एक्सरे वेव उसके ऊपर में आएगी, तो वो इस एटॉमिक ऑसिलेटर को, नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एटॉमिक ऑसिलेटर को वो फोर्स्ड वाइब्रेशन करवाएगी। वो क्या करवाएगी? उसको फोर्स्ड वाइब्रेशन करवाएगी। द इंसिडेंट एक्सरे वेव सेट्स द एटॉमिक ऑसिलेटर ऑफ द स्कैटरर इनटू फोर्स्ड वाइब्रेशन। और फोर्स्ड वाइब्रेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब भी कोई पार्टिकल फोर्स्ड वाइब्रेशन करता है तो उसके वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो इंसिडेंट जो पीरियोडिक एजेंट है उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर रहता है। तो यहाँ पर जब एटॉमिक ऑसिलेटर ऑफ स्कैटरर एक्सरे वेव के इफेक्ट में फोर्स्ड वाइब्रेशन करेंगे तो वो जो रेडिएशन इमिट करेंगे, वो सेम फ्रीक्वेंसी का होगा, सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडिफाइड कंपोनेंट, देयर एग्जिस्ट ओनली मॉडिफाइड कंपोनेंट, and hence classical theory could not be able to explain the existence of modified component and it is failure in explaining Compton effect। समझ में आया? According to classical theory, the incident X-ray wave sets the atomic oscillator of scatterer into forced vibration and therefore the scatterer emits the radiation of same frequency as that of incident and there exists only unmodified component. There will be no existence of modified component according to classical theory and hence this theory is failure in explaining Compton effect. Whereas according to quantum theory, according to quantum theory, अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन थ्योरी, अब क्या हुआ? ये आपका एटॉमिक ऑसिलेटर का ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ एटॉमिक ऑसिलेटर। ये इंसिडेंट एक्सरे फोटोन है जो उसके ऊपर में आ रहा है, दिस इज फोटोन। नाउ दो चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप क्लासिकल थ्योरी यूज़ करेंगे तो एक्सरे वेव या आप ये वर्ड यूज़ करेंगे, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करेंगे तो आपको एक्सरे फोटोन लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप वेव ले रहे हैं, यहाँ पे एक पार्टिकल ले रहे हैं। तो जब ये फोटोन इस एटॉमिक ऑसिलेटर के किसी इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट होता है तो पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू रिकॉइल। एक पर्टिकुलर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो जाता है और विथ रिड्यूस्ड एनर्जी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में जो फोटोन रहता है ये स्कैटर्ड हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्कैटर्ड फोटोन आपका जो है इसका एनर्जी जो है वो रिड्यूस्ड हो गया। सपोज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज EI, एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज E एंड एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज EF। देन क्लियरली आपको यहां दिख रहा है EF इज लेस देन EI। क्यों? क्योंकि पार्ट ऑफ एनर्जी हैज बीन यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू गेट रिकॉइल्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड विथ रिड्यूस्ड एनर्जी ये इधर चला गया। अब इसकी एनर्जी ज्यादा थी EF का वैल्यू कम है तो ये यहां पर क्या हुआ? EF का वैल्यू कम है तो वी नो दैट E इज इक्वल्स टू hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। इफ इट इज EF और यहाँ पर आएगा आपको लैम्डा F, तो आप देख सकते हैं EF को कम होने के लिए लैम्डा को बढ़ना पड़ेगा। Why? Because energy is inversely proportional to wavelength. Therefore, as the energy of scattered radiation is reduced, its wavelength increases and there exists modified component of wavelength. This is how quantum theory can explain properly the existence of modified component and hence it is said that classical theory is failure in explaining Compton effect and quantum theory successfully explains the Compton effect, that is the existence of modified component. So this is a very important question which was very oftenly asked in so many times in examination. How classical theory is failure and how quantum theory successfully explain the Compton effect। और अगर से MCQ टाइप इस बार एग्जाम होगा तो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे, तो इट इज़ रिक्वेस्टेड टू वॉच इट वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर योर नोट्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।